All right. So let us begin with the session. So a very good evening to everyone. Today we have a very special guest with us. But before we start, let me share a couple of lines. After this session, we will be able to understand the science of financial planning, which takes into account your income streams, expenses, constraints, wishes, and responsibilities, and will help you to do optimal management of your finances. This is only an awareness drive meant for your benefit. Briefing more on this topic, we have with us Mr. Lalit Jha, who will be taking on more in detail about financial planning. A brief about Mr. Lalit Jha. Lalit Jha is a product specialist who is having overall 14 years of experience. He is currently associated with ICICI Prudential Asset Management Company. Earlier, he was associated with Reliance and Birla. Before we take this session forward, I would request the participants to ask the Q&A, to use the Q&A box to have, if they have any queries or questions. At the end of this session, we will be taking the questions. Now, handing over the screen to Mr. Lalit Jha. The stage is yours, Mr. Lalit Jha. Welcome. Thank you. 1 minute. I will just share the screen. Whether the screen is visible and am I audible? Yeah, it's visible and audible too. Thank you very much. So good evening, everyone. Welcome to all of you at today's investor awareness program. So we are here to educate you on financial planning and investment. It is not any kind of product selling. So be open, and any questions you have, you can put it on chat box during the session. After the session, we will go through all Q&A and will advise you on your answer. So thank you very much. Just to start, everybody in this panel or everybody in this session, most of us would like to be rich and wealthy. So being rich is not enough. मान लो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो क्या फायदा वैसा रिच होने का? या आपके पास बहुत सारा पैसा है बट नो फैमिली मेंबर स्टेज विथ यू, ठीक है, सब अलग अलग है, तो वैसा रिच होने से क्या फायदा? तो हमको खाली रिच नहीं बनना है. वी वांट टू बी रिच एंड वेल्दी and not at our old age, when we are young and healthy. So it is all about journey of proper financial planning and being wealthy at right time to enjoy the wealth when we are healthy too and happier too. तो पैसा ऐसा चीज है ना, what is all about money. जैसे आपके दिमाग में पैसा आता है तो आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं? तो there are 3 thoughts. उसमें जो सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं ना, हमेशा स्पेंडिंग को लेके आते हैं. यानी आप मन में अगर सोच रहे थे कि मुझे गाड़ी खरीदना है और आपको पता है कि मेरे को मार्च के महीने में पैसे आने वाले हैं ना, तो यू विल फर्स्ट गो एंड स्पेंड दैट मनी इन बाइंग दैट कार. बिकॉज सबसे पहले जो होता है ना, स्पेंडिंग हैबिट्स जो होती है वो नेचुरल होती है. या किसी को ज्वेलरी खरीदनी है तो पहले उसके दिमाग में ज्वेलरी आएगा. किसी को वेकेशंस पे बाहर जाना है तो उसके दिमाग में वेकेशन आएगा. किसी को घर खरीदना है, तो स्पेंडिंग बिहेवियर जो है वो सबसे पहले अट्रैक्ट करता है पैसे को लेके. Saving, our ancestors were also good investors. We Indians are very good in savers. तो हमने देखा पुराने टाइम के हिसाब से, when we were like mostly our agri economy based, तो हमने देखा कि जब खेती बाड़ी होती थी तो हम क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे वो अनाज को स्टोर करने के लिए पहले से ही उसका इंतजाम कर देते थे. तो सेविंग की हैबिट जो है उस टाइम से आ रही है कि कभी बाढ़ हो जाए, सूखा हो जाए, तो हम उन चीजों का इस्तेमाल कर सके. वैसे ही आज के भी तारीख में हम जब से बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते थे, पैसे बचाने चाहिए, पैसे बचाने चाहिए. तो सेविंग की जो हैबिट है दैट इज इनकलकेटेड. तो दैट्स व्हाई वी इंडियंस आर वेरी गुड सेवर्स बट वी आर वेरी पुअर इन्वेस्टर. ऐसा हम क्यों बोलते हैं वी आर वेरी गुड सेवर्स बट पुअर इन्वेस्टर्स? बिकॉज हम पैसे तो बचा लेते हैं पर पैसे कहाँ डालना है ना, वैसे वक्त पे हमें ना गलत डिसीजन ले लेते. तो हम शायद ऐसे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां हमारा जो रिटर्न्स होता है वो हमारे गोल के हिसाब से नहीं होता है, या महंगाई इतनी ज्यादा होती है कि हमारा जो रिटर्न्स होता है वो महंगाई से भी कम होता है. तो ये 3 इमोशंस जो है, स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो स्पेंडिंग को आपको कंट्रोल करना है. कभी भी जब आपको पैसे आने वाले तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये याद रखना है कि मुझे जो चीज खरीदनी है
उसमें आप पहले नोट कीजिए, क्या ये मुझे तुरंत खरीदना है कि मैं इसके लिए वेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए वेट कर सकता हूँ तो क्या ये मैं पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं ये बाद में चीज खरीद सकता हूँ। अगर वो चीज ज्यादा जरूरी है तो आप तुरंत स्पेंड करके बाय कर लीजिए, पर अगर वो ज्यादा जरूरी नहीं है, वेट करने लायक है, तो यू कैन वेट एंड प्रॉपरली प्लान ऑन योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद अपने आप वो गोल के लिए अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हमने इन्फ्लेशन की बात की, तो एक बहुत पुराना कहावत है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, विच इज स्टेटेड बाय मिस्टर वॉरेन बफेट, हु इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर। तो जब हम बहुत बार इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात करते हैं तो हमने बहुत बार सुना है कि अभी मैं पैसे नहीं डालूंगा, मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है, कुछ बचेगा तो मैं डालूंगा, पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको जो पैसा सेव करना है वो खुद के लिए सेव करना है। यू टू सेव फर्स्ट फॉर योर सेल्फ। तो पहले आप बचा लो, जो पैसे बच गए उसको स्पेंड करो। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज अर्निंग 1 लाख के रुपीज, 10,000 या 10,000 का सेविंग करना है, तो सबसे पहले 20,000 की सेविंग कर ले और 80,000 से घर चलाए, और उसमें भी अगर बच गया तो दैट इज एन एडिशनल सेविंग। बट हम बहुत लोग क्या करते हैं, जब हमारी सैलरी आती है तो सबसे पहले हम हमारी ईएमआई भरते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ते जाता है वो पैसा बिल्कुल खत्म होते जाता है, और इस तरीके से हम डिसिप्लिन वे में जो सेविंग की हैबिट है वो नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे पहले जो है सेविंग का पोर्शन अलग करना काफी जरूरी है। That's why spend what is left after saving. Do not save what is left after spending. जैसे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो यानी आप अगर एग्जाम्पल में देखें तो जब आप बचपन में स्कूल जाते थे, आपकी उस जमाने में स्कूल की फीस कितनी होती थी और आज स्कूल का फीस कितना है, तो एजुकेशन कॉस्ट आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर तक चला गया है। अगर हम मेडिकल इमरजेंसी की बात करें आज के कोविड के समय में, तो पुराने समय में अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता था, कॉस्ट कितना होता था उसका, 50,000 टू 2 लाख। और आज के तारीख में अगर आप मेडिकल कॉस्ट देखेंगे तो 2 लाख इज मिनिमल। अगर कोई भयानक प्रॉब्लम है तो आपका जो एक्सपेंसेस या सेविंग है वो पूरा हॉस्पिटलाइजेशन में भी जा सकता है। तो मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों की बात करें तो महंगाई वहां पे भी बढ़ रही है। तो जो 5 रुपए में कैडबरी चॉकलेट 25 साल पहले आता था वो आज 25 रुपए में आ रहा है। अमूल बटर जो 6 रुपए 6.5 रुपए में आ रहा था वो 182 रुपीज में आ रहा है। जो आप टू व्हीलर खरीदना चाहते थे, जो एक जमाने में 10,000 में था, आज 70,000 प्लस है। फोर व्हीलर की बात करें तो जहां एक मारुति की जो सबसे पुरानी मारुति 860,000 में आती थी, अब अगर आप लेटेस्ट मॉडल उसी कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो 3 लाख 3.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया। तो महंगाई का इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है हमारी वो भी बढ़ते जा रही है। तो अगर आज हमारा खर्चा 50,000 है तो शायद आने वाले समय में वो एक्सपेंसेस 1 लाख भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसे की परचेजिंग पावर है वो घटते जाती है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने 1 लाख रुपीज है ना कहीं सेव करके बैंक में नहीं रखा है या इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने आपको उसको कपबोर्ड में बंद करके रख दिया है, तो जो 1 लाख की परचेजिंग पावर है 5 साल बाद उसकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। तो यानी कि जो चीज आप 1 लाख में खरीद सकते थे वो आगे जाके आपको महंगा पड़ेगा, यानी उसकी परचेजिंग पावर घट गई। और 5 इयर्स में इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर आज के हिसाब से 80,000 की हो गई। और अगर 20 साल बाद देखेंगे तो जो 1 लाख रुपए थी उसकी परचेजिंग पावर घटकर 35,000 पे आ गई। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है और हमारी सेविंग्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये इन्फ्लेशन को बीट कैसे किया जाए, इसके दो तरीके होते हैं। या तो हम कमाना ज्यादा चालू कर दे, तो आज अगर हमारी सैलरी XYZ है तो आने वाले समय में XYZ प्लस होनी चाहिए। यानी मान लो किसी की सैलरी आज 50,000 है और 50,000 में भी वो कम पड़ रहा है, तो शायद उसको कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या कुछ सेकेंडरी जॉब करने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के जरिए भी हम कैसे वो प्रॉपर वे में कर सकते हैं। सो नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स। तो हम जब पैसा कमाते हैं तो एक होता है कि हम फिजिकल वर्क या जो भी हमारे आवर्स को सेल करके कमाते हैं, दूसरा ये होता है कि हमने जो कमाए हुए पैसे है उसको अगर आप सही जगह पे लगाएंगे तो आपका पैसा भी आपके लिए पैसे कमा के दे सकता है। तो जैसे हमने पुराने जमाने में देखा, जब ज्यादा बिजनेसेस नहीं थी, जब ये सोने की असरफियां चलती थी,
तो दो ही टाइप का बिजनेस होता था। एक होता था लेंडिंग बिजनेस, जहाँ साहूकार उधार देते थे और उधार पे ब्याज कमा करते थे। तो एक था पैसे को आप किसी को उधार दे रहे हो और आप कमा रहे हो। दूसरा ये है कि आपने उस पैसे को किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो वहां पे आप कमा रहे हो। तो उधार देने के बिजनेस को हम फिक्स्ड इनकम या डेट की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जब हम किसी के बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको इनडायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो जिसको हम आज के तारीख में स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। तो जब आप स्टॉक्स में किसी के पैसे लगा रहे हो, एक्चुअली आप उसके बिजनेस में पैसे लगा रहे हो और उसके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जो होता है वो आपके पास आता है। बट क्योंकि वो एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, डेली प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तो हमको एक्चुअली लगता है कि हम बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम किसी के कंपनी में इन्वेस्ट करके उस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और एग्जिट कर लेंगे जब प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल सबसे ज्यादा जरूरी है, और जरूरी नहीं है अगर सबका गोल सेम हो तो सबका इन्वेस्टमेंट भी सेम स्कीम में हो। तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, अगर आज सबको गोवा जाना है, आप लोग को गोवा का प्लान करना है, तो क्या आप सब लोग एक ही तरीके से गोवा जाओगे? द आंसर विल बी नो। Somebody would like to travel through aeroplane, somebody would wish to travel through their own car, somebody will prefer to go by train। तो हर किसी को गोवा ही जाना है अगर फाइनल डेस्टिनेशन, पर व्हीकल चेंज हो रहा है बिकॉज सबका पोजिशनिंग और टाइम सब वैसे ही। इन्वेस्टमेंट में सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, भले ही गोल सेम है पर हर कोई डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करेगा क्योंकि सबका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है। तो कोई प्योर इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करेगा, कोई प्योर डेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करेगा, कोई दोनों के मिक्स मॉडल में करेगा जिसको हम हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। तो गोल भले ही अगर सेम हो लेकिन इन्वेस्टमेंट के पाथ चेंज हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो जब आप ओला उबर की सवारी करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको गाड़ी बुलाने के लिए डेस्टिनेशन डालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं गोल मेंशन करना पड़ता है। जब आप डेस्टिनेशन डाल देते हो तो उसके बाद आपको बताता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड ये वाली गाड़ी से 5 मिनट में आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जब आप बैठ जाते हो गाड़ी में तब वो आपको बताता है कि अब आपके गोल में यानी आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अंदाज से 40 मिनट का वक्त लगेगा। और अगर कोई ट्रैफिक आता है तो वो ये भी बता देता है कि ये जो 40 मिनट की जर्नी है शायद 10 मिनट ज्यादा लगेगा। तो ठीक जब आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है। बहुत बार क्या होता है हम इन्वेस्टमेंट इसके लिए करते हैं कि भाई कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न दे देगा वो फंड बता दो। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप पहले फाइनेंशियल गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे 5 साल में इतने पैसे चाहिए, 10 साल में इतने पैसे चाहिए, और क्या रेट से रिटर्न आएगा तो मैं कितने समय में पहुंच जाऊंगा। तो इट इज ऑल अबाउट गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग वेन एवर यू आर डूइंग ए प्लानिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अब इस गोल को पहुंचने के लिए जैसे हमने गोवा के एग्जांपल में देखा हर कोई डिफरेंट व्हीकल यूज कर सकता है। कोई एरोप्लेन से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई कार से जाएगा, कोई बस से जाएगा। वैसे ही आप अपने फाइनेंशियल गोल पे पहुंचने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक डिपॉजिट्स को यूज करते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे इंश्योरेंस भी बाय करते हैं। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है और हर इंस्ट्रूमेंट्स के अपने फायदे और अपना नुकसान है। तो जैसे बैंक डिपॉजिट्स में करते हो तो वहां आपको रिटर्न गारंटेड होता है क्योंकि बैंक एक गारंटी लेता है, पर आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से आपका प्रिंसिपल गारंटेड होता है, ना कि रिटर्न्स गारंटेड होता है। और इसके जो रिटर्न्स आते हैं वो अगर आप पोस्ट टैक्स देखोगे तो इन्फ्लेशन से भी कम आता है अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो। पर यहाँ एक कंफर्ट होता है कि आपका जो कैपिटल है वो कंफर्टेबली थोड़ा सेफ है। प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो प्रॉपर्टी में काफी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं। सबसे पहले तो अगर वो लीगल क्लियर है, जब आपको एक्चुअल में पैसे की जब जरूरत पड़ती है तब तुरंत आपको पैसे भी नहीं मिलते। ऑन पेपर तो प्राइस बढ़ जाते हैं लेकिन जब एक्चुअल में जरूरत है तब नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए आपका 3 BHK का फ्लैट 1 करोड़ का है और आपको 25 लाख की जरूरत है, तो आप हॉल और या बेडरूम बेच के तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ जो इशू सबसे बड़ी होती है लिक्विडिटी की होती है। पर फायदा ये होता है कि क्योंकि ये रियल है, रियल एसेट्स बोलते हैं हम इसको, इसलिए रियल इस्टेट बोलते हैं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। प्लस रियल इस्टेट इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते भी जाता है और आपको एक रेंटल इनकम यानी एक कैश फ्लो मिलते जाता है।
वैसे ही हम देखेंगे गोल्ड जो कमोडिटीज है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तो खरीदते हैं, लेकिन आपने देखा है कभी किसी को गोल्ड जल्दी बेचते हुए? तो हमारे यहाँ पुराने जमाने से हम लोग गोल्ड बाई करते हैं, क्यों? क्योंकि गोल्ड एक है ना कॉमन मॉनेटरी करेंसी है पूरी दुनिया का। और कॉमन मॉनेटरी करेंसी यानी कभी दुनिया में अगर इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो ऐसे सब सिचुएशन में आप देखोगे गोल्ड की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं और गोल्ड में एप्रिसिएशन भी दिखता है। तो जैसे आपको लास्ट 2 साल में दिखा, वैसे 2009 में जब ग्रीक क्राइसिस हुई, तभी ये गोल्ड में मूवमेंट आया। तो जब कभी भी दुनिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और इकोनॉमिक फेलियर दिखाई देता है, तो आप देखोगे गोल्ड में एक रैली आ जाती है। तो गोल्ड इज फॉर सेफ्टी। तो हम भी जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे एंसेस्टर जो करते थे, वो इसके लिए करते थे कि कभी बुरा वक्त होगा तब इसको बेच के काम चल सकता है। बट गोल्ड को एज अ रिटर्न बनाने के लिए हमने काफी कम लोग को ही देखा है कि परचेज सेल करते हैं लोग। और सेकंड चीज, अगर आपने इसको ज्वेलरी फॉर्म में रखा है तो आपको लॉकर के चार्जेस और चोरी होने का भी डर रहता है। तो इसके अपने रिस्क है और अपने फायदे। ये इन्फ्लेशन से हमेशा ऊपर चलता है। तो जैसे हमने देखा, अगर आप पैसे कमाते हो और पैसे को कबाड़ में रख देते हो, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घटते जाती है। पर गोल्ड में आप कभी नहीं देखोगे कि उसकी परचेजिंग पावर घट गई है। यानी कि 10 ग्राम सोना अगर आपने 1980 में लिया था, तो आज उसकी परचेजिंग पावर आज भी ज्यादा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बॉन्ड्स यानी उधार देना हुआ। तो अगर कंपनीज उधार लेती है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं, गवर्नमेंट उधार लेती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्ड आपको एक पर्टिकुलर टेन्योर पे पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जितनी कंपनी का रिस्क का प्रॉब्लम है, उतना ज्यादा वो रिटर्न देगा। तो बॉन्ड्स में सबसे बड़ी चीज जानने लायक ये होती है कि मैंने जिस कंपनी को उधार दिया, वो कंपनी मेरे को पैसे पहले लौटाएगी क्या? कोई ज्यादा ब्याज दे रहा है, उस लालच में हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है आपका स्टॉक मार्केट। तो जैसे मैंने स्टॉक मार्केट आपको बताया, ये दूसरों के बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हो, उसको हम स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट बोलते हैं। तो अमीर बनने के तरीके क्या होते हैं? या तो आप खुद, जैसे ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके जैसा आप खुद ही बिजनेस करिए। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अच्छे बिजनेसेस के साथ पैसा लगाइए। तो जब आप खुद बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत चीज खुद करना पड़ता है। जैसे लैंड आपको ढूंढना पड़ेगा, फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, एम्प्लॉय हायरिंग करनी पड़ेगी। आपका अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है तब आप प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करोगे। उसके बाद आप पोस्ट टैक्स जो रिटर्न बनाओगे, वो रिटर्न बनेगा, तब जाके आप कमाते हो। वैसे दूसरा सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप पैसे कमाओ और आपको पता है कि इसके बिजनेस अच्छे है, बस उसके बिजनेस में आप पार्टिसिपेट करते हो कंपनी का शेयर खरीद कर। तो अगर मैं आपको सेंसेक्स की स्टोरी बताऊं, तो सेंसेक्स का जो स्टार्ट हुआ था 1979 में हुआ था विद 100 पॉइंट। और सेंसेक्स यानी टॉप 30 कंपनीज जो होती है, ये मिलके सेंसेक्स बनाती है। और निफ्टी में आप देखोगे तो टॉप 50 कंपनीज जो होती है वो निफ्टी बनाती है। अदरवाइज इससे ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, मोर देन 2000 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। बट जो ये मेजर कंपनीज होती है, यही सेंसेक्स और निफ्टी बनाती है। तो जो हम रोज मार्केट में अप और डाउन देखते हैं, तो सेंसेक्स यानी टॉप 30 कंपनीज में क्या मूवमेंट हुआ वो दिखता है आपको। और निफ्टी यानी टॉप 50 कंपनीज में क्या मूवमेंट हुआ वो पता चलता है आपको। तो आप देखोगे मोर देन इट इज नाउ 41 ईयर्स, और 100 से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज ऑलमोस्ट 47,000 हो चुका है। तो इट इज ऑलमोस्ट 470 टाइम्स। तो 41 साल में 470 गुना आपका पैसा बढ़ चुका है। 1979 में किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, तो गोल्ड उस टाइम पे 900-950 रुपीज पर 10 ग्राम चलता था। तो आप देखोगे इट इज ऑलमोस्ट लाइक 55 to 60 टाइम। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते थे उस जमाने में 1979 में, तब एफडी के इंटरेस्ट रेट 15% के आसपास हुआ करते थे, शायद 15% से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपने वो फिक्स डिपॉजिट को सिर्फ रोल ओवर किया रहता है मेच्योरिटी पे, जैसे मेच्योर हुआ फिर रोल ओवर कर दिया, तो वहां पे आपके जो पैसे बन गए रहते थे 30 टाइम्स के आसपास बनते थे। गोल्ड में 55 to 60 टाइम्स बनते थे, पर सेंसेक्स जहां पे ये टॉप 30 कंपनीज है, यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता तो 470 गुना बन चुका रहता था, कंसिडरिंग 47,000 सेंसेक्स। तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जो आपका पैसा बना वो सेंसेक्स में बना। पर लोग क्या करते हैं, जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो रोज मार्केट देखते हैं, जबकि वेल्थ आपका लंबे समय में क्रिएट होता है।
और एफडीज में जब हम करते हैं तो वहां हम लॉन्ग टर्म रुकते हैं जहां रिटर्न्स कम है। तो एफडी गोल्ड जो है आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म या तो मार्केट कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। तो ये जो जर्नी है 40 साल की, यहाँ आप देखोगे काफी उतार चढ़ाव हुआ है बाजार में। तो जैसे 1992 स्कैम आपने मूवी देखी रहेगी या सीरीज देखी रहेगी, तो जब 1000 पॉइंट का ही सेंसेक्स था और उसको 11 साल लग गए थे 100 से 1000 पहुंचने के लिए। और आप देखोगे ज्यादा वक्त नहीं लगा जब ये 4000 पॉइंट्स पहुंच गया। और आप देखोगे इस जर्नी में काफी स्कैम, क्राइसिस, प्राइम मिनिस्टर मर्डर, काफी चीजें हुई, .com बबल हुआ, सब प्राइम क्राइसिस हुआ, इतना सब चीज होने के बावजूद भी ये सेंसेक्स ने आपको 470 गुना का रिटर्न बना दिया। जैसे कुछ सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे विप्रो विप्रो जो डालडा बनाने वाली कंपनी थी, जब ये आई थी तो इनको जमीन चाहिए थे, और जिन लोगों से इन्होंने जमीन बाई किया था उनको इन्होंने पैसे दिए थे, और कुछ लोग को ये भी ऑफर दिया था कि आप मेरे शेयर ले लो, पैसे नहीं चाहिए तो 10,000 रुपए उस समय जिसने भी विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए डाले थे, उनका 10,000 का वैल्यू 750 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। और अगर आप स्प्लिट के हिसाब से देखोगे तो ये 1981 से लगातार शेयर स्प्लिट होते गए, यानी कि आपके पास अगर 100 शेयर थे, 1:1 हुआ तो 200 शेयर हो गए। ऐसे ये स्प्लिट होते होते नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए, और नंबर ऑफ शेयर्स भी, उनकी वैल्यू भी 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। उसके अलावा जो डिविडेंड आए, तो 10,000 की वैल्यू सोचिए 750 करोड़ के आसपास होगी। वैसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम इन्फोसिस, जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसका ले, तो जब इसकी आईपीओ आई थी, अगर आपने उसके आईपीओ में मिनिमम अलॉटमेंट वाला ही शेयर लिया रहता, उसमें आपके कॉस्ट थी 9,500 रुपीज, और मार्केट वैल्यू अब बढ़ चुकी है 7 करोड़ प्लस। और इसके डिविडेंड जो आए हैं 18 लाख के आसपास सिर्फ डिविडेंड आए हैं इस शेयर से, इन्फोसिस। वैसे हम देखेंगे तो खाली आम आदमी इन्वेस्ट नहीं करते, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने आनंद महिंद्रा का नाम सुना होगा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक है। और इनके पास उदय कोटक जी आए थे जब ये कोटक बैंक स्टार्ट करना चाहते थे, और उन्होंने अपना आइडिया आनंद महिंद्रा जी के साथ डिस्कस किया, और आनंद महिंद्रा जी को उनका आइडिया पसंद आया, और उनकी लीडरशिप पे उनको भरोसा था। उन्होंने उनको 1 लाख रुपीज दिए और इन्वेस्ट किए कोटक महिंद्रा फाइनेंस के शेयर में। और 1 लाख की वैल्यू उन्होंने खुद ट्वीट किया था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, क्योंकि 1 लाख की वैल्यू जो है 1400 करोड़ पार हो गई, और आज के तारीख में उस 1 लाख की वैल्यू 2000 करोड़ के आसपास है। तो आप देखेंगे कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके कैसे कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। वैसे और एक मजेदार एग्जांपल दूंगा आपको, रॉयल एनफील्ड जो बुलेट बाइक्स है, जो काफी फेमस है, खासकर कि यंग जनरेशन में। आप अगर किसी भी यंग जनरेशन से पूछो अगर बाइक खरीदनी है, तो बहुत लोगों को बुलेट पसंद है। और अगर आप देखोगे ये जो कंपनी बुलेट बनाती है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो आयशर मोटर्स है। तो आयशर के ट्रक्स देखे रहेंगे आपने। तो इस 2001 में बुलेट की बाइक की प्राइस थी 55,000 रुपीज। तो अगर उस समय अपने आपका प्लान डिले करके बुलेट नहीं बाई करके आयशर मोटर्स के शेयर्स खरीदे रहे थे, जो 17 रुपए 50 पैसे पे थे, तो 15 साल में इस 55,000 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 करोड़ रुपए। कितनी? 8 करोड़ रुपए। और अब आप बुलेट नहीं, आप रॉल्स रॉयस बाइक कर सकते थे। तो आपने देखा ये मैजिक जो होता है इन्वेस्टमेंट का। तो पीटर लिंच जो एक सबसे बड़े इन्वेस्टर थे और फिडलिटी के फंड मैनेजर रह चुके थे, उन्होंने एक अच्छी चीज क्या कही थी कि जो आपके आसपास चीजें दिख रही है, जो लोग ज्यादा बाई करना पसंद कर रहे हैं, अगर ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके शेयर प्राइसेस अच्छे करेंगे, क्योंकि उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं और लोगों में डिमांड है, और यानी कि उसका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो इट इज नॉट लाइक आप बाइक मत बाई करिए, बट इट इज एन एग्जाम्पल कि जैसे आप जो देख रहे हैं आसपास चीजें जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसका डिमांड भी है और काफी बायर्स है, तो कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में, और वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। एंड ये जितनी भी कंपनी मैंने डिस्कस की है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूँ कि आप ये जाके स्टॉक्स बाय कर लिए। इट इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने पे लोगों ने काफी पैसे बनाए, और इसमें थोड़ा रिसर्च लगता है, थोड़ी स्टडी लगती है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, और इसका आने वाला समय कैसा है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितने, काफी स्टडी करनी पड़ती है।
उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको सक्सेस स्टोरी बताई है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी सक्सेसफुल होती है। हमने बहुत सारी कंपनी ऐसी भी देखी है जो 3 डिजिट 4 डिजिट में शेयर के प्राइस थे और आज सिंगल डिजिट में है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए जहां पे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके पैसे को अच्छे से स्टडी करके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर कल को उस कंपनी में प्रॉब्लम भी आता है तो आपका जो रिस्क होता है वो काफी मिनिमल होता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है सबसे डिफिकल्ट क्या है, उसको फॉलो करना है। सिंपल, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन मैंने जैसे बताया बहुत डिफिकल्ट है सिर्फ फॉलो करना, उस चीज को फॉलो करना यानी डिसिप्लिन वे में। तो अगर आप देखें फाइनेंशियल प्लानिंग काफी इजियर वे में हो सकता है, तो ये मैंने रॉकेट के जरिए समझाया है। और जैसे वो मंगलयान पे रॉकेट गया था, अगर आप इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके भी लाइफ में मंगल होगा आपका। तो आप देखेंगे ये रॉकेट का बेस क्या है, इट इज अ लाइफ कवर एंड हेल्थ कवर। इंश्योरेंस इसका बेस है। तो आप देखेंगे कोई भी कंट्री जब अपना बजट बनाती है तो सबसे पहले क्या करती है, डिफेंस बजट पे खर्चा करती है। और आज के तारीख में हम देखेंगे जो क्राइसिस में हम चल रहे हैं, वहां पे भी इंडिया ने जो सबसे ज्यादा स्पेंड किया वो किस पे किया है, डिफेंस पे किया है। और इवन खुद मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि वो जरूरत है, क्योंकि जब तक आप सेफ नहीं रहोगे तब तक आप ग्रो कैसे होगे। तो वैसे ही आप देखोगे सबसे ज्यादा जरूरी है जो अर्निंग मेंबर्स है, जिसके इनकम पे फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है, उसका एक प्रॉपर लाइफ कवर होना है। और लाइफ कवर कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। अगर आप टर्म पॉलिसी बाई करेंगे तो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि आप 1 करोड़ का भी लाइफ कवर यू कैन बाय एट अ कॉस्ट ऑफ लाइक 15,000 to 25,000 के कॉस्ट में आप 1 करोड़ का कवर बाय कर सकते हो। इससे क्या होता है कि कल को कुछ अनहोनी हो गई अर्निंग मेंबर के साथ और जिसकी इनकम पे फैमिली डिपेंडेंट है, तो दे आर कंफर्टेबल कि इमोशनल लॉस तो कवर नहीं होगा, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस के पैसे से उनकी जिंदगी रुकेगी नहीं। सेकेंड इज हेल्थ कवर। ऐसे टाइम पे हमने कोविड में भी देखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि क्या है कि जब फैमिली मेंबर में कोई बीमार होता है तो हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और वी नीड प्रॉपर हेल्थ चेकअप एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दैट। और आज के तारीख में आप देखेंगे जो मेडिकल कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। प्लस इंडिया में आप देखोगे कोई सरकारी अस्पताल भी ज्यादा नहीं है और उनपे सुविधा भी ज्यादा नहीं है, तो आपको अच्छी जगह ट्रीटमेंट करना है तो पैसे खर्च होंगे। तो कल को ऐसा कुछ होता है तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ना पड़ेगा, किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपने प्रॉपर हेल्थ कवर लिया हुआ है तो सबसे अच्छा है कि फैमिली फ्लोटर करके जो कवर होता है जहाँ पे आपके पूरे फैमिली मेंबर्स कवर हो जाते हैं, वैसे टाइप का कवर लीजिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जैसे मैंने बताया 20,000 के आसपास आपको टर्म पॉलिसी में कॉस्ट आता है, तो शायद हेल्थ कवर में भी अप्रोक्स कॉस्ट 20,000, तो साल का 40,000 आपने कवर के जरिए बना लिया। उसके अलावा 40,000 यानी आपका महीने का एवरेज पकड़ लीजिए 3,000 से 4,000 रुपया जा रहा है। बट अगर ये 40,000 में 20 साल में कैलकुलेट करूँ तो आप अगर 8 लाख रुपया भर रहे हो, लेकिन कोई भी अनहोनी होती है या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो दोनों चीज आपकी कवर्ड हो जाती है एट अ वेरी स्मॉल अमाउंट और अ मिनिमल अमाउंट। वैसे ही आप देखेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, लिक्विडिटी और फिर रिटर्न्स। यानी मेरा पैसा जो है वहाँ डाउन साइड क्या है, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड, जब मेरे को पैसे की एक्चुअल में ज्यादा जरूरत है तो मुझे कितने समय में पैसा मिलेगा, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। और तीसरा रिटर्न्स होता है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आप देखिए कि मुझे कितना पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है और मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है और इसके जगह पे मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो पहली कैटेगरी हम जिसको बोलते हैं पार्किंग कैटेगरी। पार्किंग कैटेगरी क्या होता है, जैसे आप कार पार्किंग करते हो बट इट इज अ टेम्पररी, आप कभी भी निकाल सकते हो। वैसे इन्वेस्टमेंट में भी जब आप पैसे डालते हो और आपको पता है कि ये पैसे की जरूरत मुझे कभी भी लग सकती है, तो उसको हम पार्किंग कैटेगरी बोलते हैं। और इसमें जैसे लिक्विड, अल्ट्रा लिक्विड टाइप के फंड आते हैं, जहां पे आपने जितने दिन भी पैसे रखे उतने दिन के भी आपको ब्याज मिलते हैं। सेविंग क्या होता है, जहां पे जैसे आप एफडी करते हो 1 साल, 3 साल, 5 साल, पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो उसके सामने अगर उसके मुकाबले आपको म्यूचुअल फंड में कोई अच्छी कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए तो उसको हम सेविंग्स बोलते हैं, यानी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं जो 30 दिन से लेके आपके 3 साल तक के पेपर होते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। और ये आपको एफडी में जो टीडीएस काट के इंटरेस्ट मिलता है
म्यूचुअल फंड के डेट प्रोडक्ट्स में आपको पोस्ट टैक्स उससे बेटर रिटर्न मिलता है, 1 से 2% ज्यादा बेटर रिटर्न आते हैं। तीसरा कैटेगरी है कि अब मेरे को ना डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, पर मेरे को रिस्क नहीं लेना ज्यादा, और मुझे बाजार को टाइम नहीं करना है कि बाजार सस्ता है महंगा है। खाली आपको ये पता है कि मिनिमम तो मैं 3 साल रहूंगा, उसके ऊपर भी रहूंगा। तो ऐसी कैटेगरी में जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है, जहां इक्विटी और डेट मार्केट का मिक्स होता है, इस टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बाजार को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर बाजार सस्ता होता है तो फंड मैनेजर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है, बाजार महंगा होता है तो इक्विटी में कम कर देता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन किससे होता है? टाइम से होता है, ना कि टाइमिंग से। बहुत लोग क्या है, बाजार को टाइमिंग के करने के चक्कर में वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते, बट इट इज ऑल अबाउट टाइम, जो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा जब आपके पास इससे ज्यादा सरप्लस पैसे है, देन यू कैन थिंक ऑफ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पीएमएस, या एडिशनल घर, मतलब रहने के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, रियल एस्टेट या गोल्ड सिल्वर। पर सबसे पहले जरूरी है इंश्योरेंस, उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट में ये जो 4 स्क्वायर हमने डिस्कस किए, पार्किंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। तो मैथ्स का एक सिंपल फॉर्मूला हमने बचपन में सबने पढ़ा था, LHS इक्वल टू RHS, जिसको हम बोलते थे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब इक्वेशन सॉल्व करते थे। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ये याद कर लीजिए, LHS मतलब लाइफ कवर, हेल्थ कवर, एंड थर्ड इज SIP इज इक्वल टू रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। अगर आपने ये 3 चीज अच्छे से प्लान कर लिया है, तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक जो है वो आपका क्लियर है। बस आपको इसको डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है, उससे ज्यादा सरप्लस है तब आपको अदर एसेट क्लास देखना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसे हमने पार्किंग फंड की बात की, वहां हमने इमरजेंसी फंड बोलते हैं उसको, या तो कंटिजेंट फंड बोलते हैं। तो कुछ पैसे हमेशा हमारे पास रेडी रहने चाहिए, जो कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े। जैसे आपने देखा मार्च के बाद अचानक लॉकडाउन हो गया, बहुत लोगों की शायद नौकरियां भी चली गई उस समय, तो आपके पास एक इमरजेंसी किटी क्रिएटेड रहनी चाहिए। और एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए वो कोई नहीं बता सकता है, बट ऑन एन एवरेज जो आपकी मंथली इनकम है, उसका एटलीस्ट 6 मंथ का जो बफर है वो आपके पास एक जमा होना चाहिए, कि जब कभी भी इमरजेंसी आए तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ना पड़े, और ये इमरजेंसी फंड से 3 महीना 6 महीना जो भी सर्वाइवल है वो चल पाए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंटिजेंट फंड और इमरजेंसी फंड। अब ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर स्कीम में। अब वो या तो इक्विटी स्कीम हो सकता है जहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, या तो डेट मार्केट हो सकता है जहां पे कंपनियां बॉन्ड्स या जितनी भी कंपनीज फंड रेज करती है वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, और या तो दोनों का मिक्सचर होता है, या कभी कभी इसमें गोल्ड भी होते हैं, तो गोल्ड, इक्विटी, डेट, तीनों का मिक्सचर होता है। तो फंड मैनेजर पैसों को पर्टिकुलर स्टॉक्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और वहां से जो रिटर्न्स डिलीवर होते हैं वो जितने इन्वेस्टर ने बाई किए थे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जैसे आपने गांव में देखा रहेगा, जब तालाब में एक टेंडर निकलता है मछली पकड़ने का, तो टेंडर के लिए साइन करते हैं, और जो प्रॉफिट होती है वो जितने लोग ने मिलकर टेंडर भरा रहता है वो आपस में बांट लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड कुछ इसी पूल की तरह काम करता है, जहां इन्वेस्टर अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को आपस में बांट लेते हैं, जिसको हम NAV बोलते हैं। तो जब आप यूनिट्स बाई करते हैं तो आपकी NAV, एक पर्टिकुलर NAV से यूनिट्स बाई होती है, और जब वो रिटर्न्स बनते हैं तो NAV आपकी बढ़ते जाती है। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। तो जब कभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो आपको यूनिट्स मिलेगा उस पर्टिकुलर स्कीम का, और वो पर्टिकुलर NAV पे मिलेगा। जब आप नए फंड में डालते हो तो वो 10 रुपए के NAV के हिसाब से आपको मिलता है। सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? तो इसके कॉस्ट जो होते हैं वो कम होते हैं। जब आप देखोगे बाकी एसेट क्लास, जैसे रियल एस्टेट, जब आप बाई करते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, प्रॉपर्टी टैक्स, काफी चार्जेस आते हैं। वैसे ही आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो इट इज वेरी लो कॉस्ट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉस्ट भरना है आपको, टाइम टू टाइम ये देना है। देयर इज ओनली वन सिंगल कॉस्ट, दैट इज फंड मैनेजमेंट चार्जेस। जो भी होता है वो भी आपको अलग से नहीं देना रहता है। जो NAV आपकी डिक्लेयर होती है, तो जितने इन्वेस्टर उस फंड में, उस इन्वेस्टर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वो रेंज करता है, डिपेंड करता है 50 पैसे से लेके 1.5% तक, या 1% से लेके 2.5% तक कॉस्ट होती है। तो इट्स कॉस्ट इज वेरी मिनिमल। कन्वीनियंट है इन्वेस्टमेंट करना,
मतलब लोग बोलते हैं कि जैसे शेयर खरीदना है, तो मान लो ये जैसे एक एमआरएफ कंपनी है जो टायर्स बनाती है, उसका एक शेयर का भाव 50,000 रुपए। अब आपके पास है 5,000 रुपए, क्या आप वो शेयर खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। पर म्यूचुअल फंड के जरिए आप 5,000, 1,000 रुपया, 500 रुपया भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, और स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जब हम खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब बाजार में अच्छा चल रहा होता है, तो पान वाला भी आपको टिप दे रहा होता है कि ये स्टॉक खरीद लो, चल जाएगा, और आप सही में खरीद लेते हो और वो चल भी जाता है। तो आपको लगता है कि पान वाला तो बहुत समझदार है, इसने हमको स्टॉक का टिप दे दिया। पर आप ये नहीं देखते हो कि जब मार्केट बुल मार्केट में होता है, तो कोई भी आपको कोई भी स्टॉक बताए तो शायद वो चल जाएगा, पर जब गिरने का वक्त आता है तो कोई नहीं आपको बताता है कि निकलना है। तो यहाँ पे आप देखोगे फंड जो मैनेज करते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, कंपनी की रिसर्च करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते हैं, कंपनी विजिट भी करते हैं कि क्या बनाती है। तो काफी स्टडी करने के बाद ये इन्वेस्ट करते हैं लोगों का पैसा। तो इट इज लाइक आप फ्लाइट पकड़ के कहीं जा रहे हो, तो आप देखते हो कि पायलट प्रोफेशनल है, आप ये नहीं देखते हो कि आप पायलट कौन से स्पीड से चलाएगा, कौन से स्पीड से टेक ऑफ करेगा, कौन से स्पीड से लैंडिंग करेगा। आप खाली एक एयर टिकट बाय करते हो, बोर्डिंग पास लेते हो, एंटर करते हो, और आपको बता देता है कि 2 घंटे लगेंगे आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। शायद कभी कभी अनाउंसमेंट होता है कि टर्बुलेंस आएगा, ठीक है, या थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वैसे म्यूचुअल फंड में भी जब आप अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो कभी कभी वो टर्बुलेंस टाइम आता है, बट वो टर्बुलेंस टाइम पास भी हो जाता है। तो इट इज लाइक प्रोफेशनल, मैनेज बाय प्रोफेशनल। चौथा आप देखोगे तो इट इज अ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो जब आप पर्टिकुलर शेयर या किसी में भी इन्वेस्ट करते हो, या किसी को उधार भी देते हो, तो वहाँ रिस्क आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि आपने जहाँ पैसा लगाया है, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया या उधार दिया उसने पैसे नहीं दिए, तो आपके नुकसान हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आप देखोगे एक स्कीम में 20 कंपनी से लेके 100 कंपनी तक इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपका जो रिस्क है वो पर्टिकुलरली डाइवर्सिफाइड होता है। पैसे भी आप कम पैसे में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन लेते हो, तो जो आपका रिस्क होता है वो कम हो जाता है। फिफ्थ चीज देखोगे, इट इज वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। तो आप देखोगे इट इज नॉट अ पॉन्जी स्कीम, इट्स वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। तो जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है, वैसे सेबी इन्वेस्टर के अच्छे के लिए यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। और ये काफी ट्रांसपेरेंट भी है। तो जो आपने पैसे जो स्कीम में इन्वेस्ट किए, उस स्कीम ने कहाँ कहाँ पैसे डाले, कितने कितने पैसे डाले, उसका सब डिटेल्स कंपनीज की वेबसाइट और उनके फैक्टशीट में मंथ टू मंथ पब्लिश होती है। तो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट कि आपको कितना चार्ज लग रहा है, कहाँ मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, मेरा जो मैंने खरीदी किया था उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो इट इज वेल पब्लिश्ड एट अ रेगुलर बेसिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज लिक्विडिटी। जब कभी भी आपको पैसे की जरूरत है, तो यहाँ आपको 1 दिन से 5 दिन में आपके पैसे मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन द स्कीम। तो लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा है। तो आप देखोगे अब म्यूचुअल फंड के प्रकार कैसे हैं। तो जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, केक डिफरेंट टाइप के। तो वैसे म्यूचुअल फंड भी जैसा लोगों का रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है। तो ओपन एंडेड यानी आप कभी भी उस स्कीम में बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। क्लोज एंडेड यानी जब ये नए फंड आते हैं तभी आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद कोई नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। उसकी एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी होती है, उस मेच्योरिटी के बाद ही आपको पैसा मिलता है, जिसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। इंटरवल्स यानी बीच बीच में ये ओपन होता है सब्सक्रिप्शन के लिए। वैसे आप देखोगे जिस हिसाब से फंड मैनेजर उस पैसों को मैनेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट, यानी वहां फंड मैनेजर अपनी स्किल्स को यूज करके कंपनीज आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करता है। दूसरा होता है पैसिव। पैसिव में उसको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो इंडेक्स है, जैसे मैंने बताया सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में जो 30 कंपनी जो रेशो में है उसी रेशो में इन्वेस्ट कर देता है। तो यहाँ उसको कोई दिमाग नहीं लगाना कि इस स्टॉक्स में डाले कि किस स्टॉक्स में। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ते जाता है। तीसरा है किस स्टाइल के इन्वेस्टमेंट में है। तो जैसा फंड मैनेजर का स्टाइल है, ग्रोथ, वैल्यू, जिस स्टाइल से वो ऑपरेट करता है। और फोर्थ जैसे मैंने बताया, इक्विटी है तो ग्रोथ फंड्स, डेट है तो इनकम फंड्स, और दोनों का मिक्स है तो हाइब्रिड फंड्स। और वैसे आप देखोगे अलग अलग प्रकार भी है। आप एक्सचेंज से भी बाय कर सकते हैं, फंड हाउस से भी बाय कर सकते हैं। तो जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं स्टॉक के जैसे ही लिस्टेड होते हैं, जिसको ईटीएफ बोलते हैं। आपको गोल्ड फिजिकली नहीं बाय करना है, पर गोल्ड जितना ही रिटर्न चाहिए, तो गोल्ड ईटीएफ होते हैं। आपको एटीसी का बेनिफिट लेना है, टैक्स बचाना है, तो ईएलएसएस होता है। आपके ऑब्जेक्टिव यानी रिटायरमेंट या चाइल्ड प्लानिंग, उस हिसाब से भी स्कीम आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ओवरसीज फंड होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है
जिसके लिए आपको आपका रिस्क के हिसाब से, आपके गोल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके फिर आपका प्लानिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बाजू वाले पड़ोसी ने स्कीम में डाला तो हमको भी डालना है। हमको हमारा रिस्क प्रोफाइल देखना है, हमारा कैश फ्लो देखना है और हमको हमारे गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर रिटर्न जो होता है एक रिस्क के साथ अटैच होता है। कोई भी बोले कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, वो गलत होता है। सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट से ऊपर जो कोई भी रिटर्न देता है वहां कोई ना कोई रिस्क जरूर अटैच होता है। तो आप देखेंगे इक्विटी में, सेक्टर फंड्स में ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो ही आपका रिटर्न बनेगा। तो जैसे मान लीजिए फार्मा में आपने पैसा डाला और कोविड की क्राइसिस चालू हो गई तो फार्मा के शेयर्स अच्छे चलेंगे, बट यही 3 साल पहले आप डालते तो फार्मा के शेयर्स घट रहे थे। वैसे बैंकिंग के शेयर्स, अगर इकोनॉमी अच्छी करने वाली है तो बैंकिंग के शेयर अच्छे करेंगे, इकोनॉमी खराब करने वाली है तो बैंक्स के शेयर्स अच्छे नहीं करेंगे। तो सेक्टरल फंड हाई रिस्क में आते हैं। वैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कंट्रीज भी, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग होती है। तो जैसे जो इमर्जिंग कंट्रीज जहाँ इंडिया है, दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, वैसे ये मिड कैप जो होते हैं दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। ये आगे जाके इसमें से कुछ कंपनियां बड़ी कंपनियां बन जाती है। लार्ज कैप कंपनीज आर लाइक यूएस, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो रिटर्न्स वहां आपके लिमिटेड होते हैं क्योंकि कंपनियां ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है और या तो बड़ी से काफी बड़ी हो जाएगी। वैसे आप देखोगे डाइवर्सिफाइड तो मिक्स ऑफ कंपनीज में करते हैं, जहाँ पे लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों टाइप की कंपनियां होती है जो आपको ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी देती है। वैसे आप डेट फंड में देखोगे तो 1 दिन से लेके 3 साल तक के सारे टाइप के फंड अवेलेबल है, जहाँ पे ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसके बाद ये सब लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लिए होते हैं। अब वाई एसेट एलोकेटर एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे इक्विटी हमने देखा लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ग्रोथ देता है, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन देता है। वैसे डेट आपको एक पर्टिकुलर एक्रूअल रिटर्न देता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज को उधार दिया जाता है, तो आपका एक रिटर्न रेंज में रहता है। ये कभी भी एकदम ज्यादा या एकदम कम नहीं होता है। और इक्विटी में एक आपका लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन होते रहता है। और गोल्ड हमने देखा ये इन्फ्लेशन को हेज करता है, यानी महंगाई बढ़ रही है तो आपकी गोल्ड की भी परचेजिंग पावर बढ़ते जाती है। तो एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही जगह लगा देना है, क्योंकि एसेट एलोकेशन एक बैलेंस थाली की तरह काम करता है, जहाँ चपाती, सब्जी, राइस, दाल, सलाद, स्वीट्स, डेजर्ट सब चीज आते हैं। वैसे ही आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक ही जगह नहीं करना चाहिए, आपको उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड रहे। दैट्स व्हाई एसेट एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब तरीके क्या क्या है इन्वेस्टमेंट करने के? आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आपके पास रेगुलर कैश फ्लो नहीं है, अचानक आपके पास पैसे आते हैं और आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट होते हैं लमसम, और करोड़ों रुपए भी होते हैं। SIP यानी एक रेगुलर इंटरवल पे जब आप इन्वेस्ट करते हो उसको SIP बोलते हैं, यानी मंथली फ्रीक्वेंसी की है तो मंथली SIP हो गई, जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट से एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पैसा सेव होते जाता है। STP ठीक SIP के जैसे ही होता है, फर्क इतना है यहाँ बैंक से हर महीने पैसे जाते हैं। STP में मान लीजिए आपने कोई पार्किंग फंड वाले फंड में रखा और उस फंड से इक्विटी फंड में आप रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हो, तो एक स्कीम से जब दूसरे स्कीम में पैसे रेगुलर इंटरवल पे ट्रांसफर होते हैं तो उसको STP बोलते हैं। स्विच यानी आपको लग रहा है कि अभी मेरे को इक्विटी में पैसा डालना है, तो डेट से आपने इक्विटी में डाल दिया या इक्विटी से डेट में डाल दिया, उसको स्विच करना बोलते हैं। तो आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच भी कर सकते हो, उसको स्विचेस बोलते हैं। वैसे आप देखोगे SIP में बेनिफिट क्या होता है, तो हर महीने बाजार जो है वो डिफरेंट होता है और बाजार में प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। तो जो आपने NAV में परचेज किया है वो हर महीने मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से चेंज होता है। तो जब आप हर महीने बाई करते हो तो समटाइम्स यू आर बाइंग एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज, समटाइम्स यू आर बाइंग एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज, एंड समटाइम व्हेन मार्केट फॉल्स यू कैन बाय एट अ रेट ऑफ 8 रुपीज ऑल्सो। तो ये ठीक उसी तरीके से होता है कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हो और प्याज का भाव अगर आपको लग रहा है 10 रुपए किलो है, तो शायद आप घर के लिए ज्यादा खरीद लेते हो, लेकिन जैसे आपको मालूम पड़ता है ये 200 रुपए किलो हो गया है, तो अब आपको जरूरी लग रहा है तो ही आप बाई कर दो, वरना लोअर क्वांटिटी बाई करते हो। तो यहाँ पे जब एक्चुअली मार्केट फॉल होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब बढ़ जाता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। तो इट इज लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट्स, इट्स अ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपकी एवरेजिंग होते जाती है। अब इसका बेनिफिट कैसे होता है हम आगे देखेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
he who understand it earn it, he who doesn't pays it. ऐसा क्यों कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड? हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक बंदा जो है वो जनरल मैनेजर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देके आया है और उसको एक ऑफर किया गया है सैलरी कि आपको हम या तो महीने का 10 लाख रुपया देंगे, और या तो दूसरा एक पजल दे दिया है कि हम आपको 1 पैसा देंगे जो रोज डबल होगा। तो आप उस महीने की सैलरी में से कौन सा सैलरी ऑप्शन चूज करोगे? तो आप थोड़ी देर सोचिए कि अगर आप उस इंटरव्यू में गए रहते तो आपको 10 लाख रुपया महीने चाहिए रहते कि 1 पैसा जो डबल हो रहा है 30 दिन के लिए वो वाली सैलरी चाहिए रहती। तो आप देखोगे कि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो वो तो यही लेगा कि 1 पैसा डबल हो 30 डेज के लिए। तो आप देखेंगे जिसने ये 1 पैसा वाला ऑप्शन लिया जो डबल हो रहा है, 10 दिन में क्या हुआ, ये 1 पैसा डबल होके 5 रुपीज हुआ सिर्फ। अब उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे, यहाँ 1/3 ऑफ मंथ खत्म हो गया और उसको कितना मिल रहा है, सिर्फ 5 रुपीज। 15 दिन हो गए, ये 1 पैसा डबल होके 163 रुपीज हो गया है। अब सोचो आधा महीना खत्म हो गया, कहाँ 10 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी, यहाँ 160 हो गया। 20 दिन बाद ये 1 पैसा ग्रो होके 5242 रुपीज हुआ है सिर्फ। तो 2/3 ऑफ द मंथ इज ओवर। तो जब हम कुछ डिसिप्लिन्ड वे में खुद के लिए भी प्लानिंग करते हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम खुद पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा ही नहीं बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है। या हमने जिम चालू किया है, हमारा ही वजन नहीं घट रहा है, सबका घट रहा है, और हम हार मान के छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप देखोगे अगर किसी ने बीच में ही छोड़ दिया तो उसका पैसा ग्रो नहीं हुआ, या उसने समझा कि 10 लाख सबसे बेटर ऑप्शन था। पर आप देखोगे जैसे ही 30 दिन हुआ तो यहाँ पे आप देखोगे जो 1 पैसा जो है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ हो के 30 डेज में कितना हो गया, 53,68,700 नाउ। तो यहाँ पे जिसका कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ते गया, आपका जो पैसा है 1 पैसा डबल होकर कितना पहुंच गया, 53 लाख रुपीज। तो एक फेमस एडवर्टाइजमेंट था युवराज सिंह का, जहाँ पे युवराज सिंह ये बोलते थे, जब तक बल्ला चल रहा है थाट है, जब नहीं चलेगा तो क्या। तो जब तक हम कमा रहे हैं तब तक सेविंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बैंक हमको लोन भी देने को रेडी है। पर जब हम कमाना बंद कर देंगे तब क्या। तो पहले हम पैसे के लिए काम करते हैं, बाद में हमको ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए जहाँ पे हमारा पैसा हमारे लिए काम करना चालू कर दे, ताकि हम नौकरी पे अगर नहीं भी गए तो जो हमारा जरूरत के लिए कैश फ्लो चाहिए मंथ का, वो आते जाए। तो एक एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे, किसी ने 10,000 की एसआईपी चालू की थी और 60 साल की उम्र तक उसने 10,000 रुपए हर महीने भरे। तो किसी ने 25 साल की उम्र में स्टार्ट कर लिया, किसी ने 35, किसी ने 45 के एज में। तो जिसने 25 के एज में स्टार्ट किया 10,000 हर महीने भरना और 60 इयर्स तक सेव किया, तो आप देखेंगे 12% के ग्रोथ के हिसाब से उसकी जो फंड एक्यूमुलेशन हो गई मार्केट वैल्यू से, वो बढ़कर 6.49 करोड़ हो गई, 6.5 करोड़ रुपए। पर किसी ने 10 साल डिले कर दिया और 10,000 रुपए की एसआईपी की, तो आप देखेंगे कहाँ 6.5 करोड़ 25 साल की उम्र से हो रहा था, 35 साल की उम्र में वो सिर्फ ग्रो होके 1.89 करोड़ ही हुआ। किसी ने और 10 साल डिले कर दिए, 45 के एज में अपनी एसआईपी चालू की 10,000 से। तो आप देखेंगे उसकी एक्यूमुलेटेड ग्रोथ कितनी हुई, 50 लाख। तो जितना जल्दी चालू कर लो उतना ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए कल करूंगा परसों करूंगा ऐसा नहीं। अगर आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट नहीं डाली है, आपने एसआईपी नहीं चालू की है, तो आपको एसआईपी चालू कर लेना है। अब हम दूसरे एग्जांपल से देखेंगे कि किसी ने 25 साल की उम्र में चालू किया था और किसी ने 40 साल की उम्र में चालू किया। तो 25 साल वाले ने 5,000 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट की, 35 इयर्स तक एसआईपी की, 21 लाख रुपीज उसने इन्वेस्ट किए टोटल, और उसकी वैल्यू बढ़कर 7 करोड़ हो गई। और आप देखोगे जो दूसरा बंदा था वो बोला आज नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, और मैं बाद में 5,000 नहीं उससे ज्यादा अमाउंट एसआईपी करूंगा। तो उसने 20,000 की एसआईपी की और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो उससे भी ज्यादा था। तो पहले वाले ने 21 लाख इन्वेस्ट किया था, इस बंदे ने 48 लाख इन्वेस्ट किया, तो उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया। पर इसने समय सिर्फ 20 साल दिया था। तो आप रिटर्न्स का फर्क देखोगे, दोनों को 15% का ही रिटर्न आया। पर इसकी रिटायरमेंट कॉर्पस कितनी बनी, 2.99 करोड़, और जिसने पहले वाले ने किया था 7 करोड़। तो आप देखोगे कम पैसा लेकिन ज्यादा समय तक एसआईपी करने के वजह से उसका वेल्थ ज्यादा बढ़ा।
तो ये एग्जाम्पल हमको ये बताता है कि अमाउंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम इम्पोर्टेंट है। तो डिले करके मैं ज्यादा बड़ा अमाउंट का एसआईपी करूंगा ये सोच के आप वेट मत करिए। छोटा, भले छोटा ही सही, आप बाद में बढ़ाते जाइए, लेकिन चालू करना जरूरी है। तो आप जितना ज्यादा जल्दी चालू करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपका वेल्थ ग्रो हो जाएगा। अब ये सब समझाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे सेशन में लोग अपनी एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, पर हर किसी के लाइफ साइकिल में एक मार्केट फॉल आता है, क्योंकि आप एसआईपी तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। तो 10,000 की किसी ने 2004 में एसआईपी चालू की थी, 2007 में बाजार एकदम तेजी में था और 3,60,000 की वैल्यू बढ़कर 5,51,000 हो गई थी। फिर 2008 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, जिसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोलते हैं। यूएस में बाजार गिरने लगे। तो आप देखोगे 2008 में अब इस बंदे का क्या हुआ, 4,80,000 इसने डाले थे और इसकी वैल्यू घटकर 3,22,000 हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर इमोशनल हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपना एसआईपी बंद भी कर देते हैं और विड्रॉ भी कर देते हैं। पर जैसा मैंने बताया था, ऐसा लाइफ साइकिल हर किसी के लाइफ में आता है, जहाँ पे मार्केट वैल्यू नीचे चले जाता है। और ये बिल्कुल अमेजोन का डिस्काउंट ऑफर जैसा होता है। जब कभी भी आपको दिखे कि मेरा मार्केट वैल्यू काफी नीचे चले गया है, वहां पे आपको पैसे ऐड करने चाहिए। बंद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आपकी जो एसआईपी चल रही थी वो एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये 2008 की मंदी के बाद जब 2009 में रिकवरी आई, तो यही जो 6 लाख रुपए थे, ये अब 10 लाख रुपए हो गए। तो आप देखेंगे कि सिर्फ पेशेंस रखने से और एक खराब साल उसको जाने देने से उसकी जो वैल्यू है, ग्रोथ बढ़ गई। ठीक उसी तरीके से इस बार भी हुआ था। मार्च में जब बाजार घट गया था, तो लोग इतने डर गए थे कि लोग डर कर पैसा निकालना चाहते थे। पर आप देखोगे जैसे ही लोगों ने वेट किया, तो आज बाजार में रिकवरी हो गई। तो ये मार्केट साइक्लिकल होता है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको आपके देश की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था पे भरोसा है, तो लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया आगे जाके ग्रो नहीं होने वाला है, तो आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट स्टेइंग काम एंड कीपिंग कंपाउंडिंग। तो टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो टाइमिंग करने से आप बचिए। और इस एसआईपी के टूल को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो जैसे हम में से बहुत लोगों ने होम लोन लिया रहेगा, और हमारे जो होम लोन होते हैं वो 20 साल से लेकर 30 साल तक रहते हैं। तो हमारे को जो ब्याज लगता है, या हमने जितने का लोन लिया है उसको रिकवर करें तो कैसे करें। तो अगर आपको कोई बताइए कि ये स्कीम बताए कि सर आप होम लोन लो और आपका इंटरेस्ट रेट 0% है, तो आप कितना खुश हो जाओगे। तो बस आप इस एसआईपी के जरिए आपके होम लोन के इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हो। कैसे? आपकी जो ईएमआई अमाउंट है, बस उसका 10% आपको एसआईपी करना है। तो यानी मान लो आप 25,000 का ईएमआई भर रहे हो, तो 2,500 की एसआईपी एक स्टार्ट कर दीजिए। तो थोड़ा ज्यादा भरने आएगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो रिकवर हो जाएगा। तो एज एन एग्जाम्पल में हम देखेंगे, किसी ने 25 लाख का लोन लिया था 20 साल के लिए, उसको 22,500 की ईएमआई आ रही थी। तो उसने 54 लाख रुपए ईएमआई में भर दिए, जिसमें इंटरेस्ट था 29 लाख रुपीज और 25 लाख कैपिटल था। अगर उसने 2,500 की एसआईपी उसके साथ चालू कर दी थी, तो 6 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया। 6 लाख की वैल्यू बढ़कर 37 लाख हो गई। और आप देखेंगे अगर आप वो 6 लाख जो आपका इन्वेस्टमेंट था उसको निकाल दे, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन 31 लाख हुआ। तो आपको इंटरेस्ट लगा 29 लाख और आपको अमाउंट आया 31 लाख। तो इस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट भी रिकवर करवा सकते हो। और इफेक्टिव रेट आपका 0% हो जाता है जब आप अपने लॉन्ग टर्म ईएमआई के साथ एक एसआईपी ऐड कर देते हो। तो इसको हम गुड ईएमआई बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ईएमआई खराब होता है, लेकिन एसआईपी इज अ गुड ईएमआई। तो जब आप एसआईपी अटैच कर देते हो आपके लोन ईएमआई के साथ, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जीरो हो जाता है। बहुत लोग हम में से सोचते हैं कि जो हमारा बच्चा है ना, जो डिफिकल्टी वाली लाइफ हमने देखी है, हमारे बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा करोड़पति होना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को करोड़पति कैसे बना सकते हो? तो आपकी उम्र में आपका बच्चा करोड़पति बन सकता है। कैसे? हमारे में और हमारे बच्चों के एज गैप में आप देखेंगे तो 25 से 30 साल का फर्क होता है। तो जैसे बहुत लोग नेमिंग सेरेमनी करते हैं, अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप छोड़ दे 25-30 साल के लिए, तो हमने पास्ट में देखा है कि 1 लाख रुपीज किसी ने डाला था, 10 रुपए की एनएवी जो है 1,000 रुपए के पार हो चुकी है 22 साल में। तो हम तो 25 से 30 साल की बात कर रहे हैं। और अगर इकट्ठा नहीं डाल रहा है, तो उस बच्चे के नाम पे 5,000 की एसआईपी चालू कर दीजिए, जो आने वाले 25-30 साल में वो 1 करोड़ के
ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे चाइल्ड के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, और बच्चा ये सोचता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, पापा कुछ हेल्प करे तो हम प्रॉपर्टी खरीदे या कुछ करे। तो बाप बेटे के भरोसे रहता है, बेटा बाप के भरोसे रहता है, और बाद में दोनों दुखी हो जाते हैं। तो अगर आप एसआईपी को अपने बच्चे के जैसा ही रखेंगे और अपने बच्चे पे जितना खर्चा करते हैं उतना एसआईपी में भी करेंगे, तो हो सकता है ये एसआईपी आपका भी देखभाल करे और आपके बच्चे का भी देखभाल कर ले, क्योंकि ये एसआईपी ग्रो होकर इतना बड़ा हो जाता है 20 साल में। वैसे ही आप देखेंगे टैक्स सेविंग ऑप्शन जो होते हैं मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। जैसे आप पीएफ के ज़रिए भी टैक्स बचाते हो। बहुत सारी टैक्स सेविंग स्कीम्स में इंश्योरेंस भी होता है। तो ईएलएसएस जो है वो सबसे शॉर्टर टेन्योर वाला एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल होता है। क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म रुकते हैं तो यहाँ पे भी वेल्थ क्रिएशन होता है। और आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो 1 लाख के ऊपर जो गेन हुए उस पे ही टैक्सेबल होते हैं, तो 1 लाख तक टैक्स फ्री भी होते हैं गेन। तो ईएलएसएस आपको बेटर ऑप्शन देते हैं एटीसी के अंडर में, जहाँ पे लॉक इन पीरियड भी आपका कम होता है। अगर आप देखें इक्विटी में क्या टैक्सेशन होता है, तो जो भी आपके रिटर्न्स बनते हैं, अगर 1 साल के अंदर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स लगते हैं 15% के। अगर आपने 1 साल के बाद किया है तो वो टैक्स फ्री हो जाता है 1 लाख तक। 1 लाख के ऊपर जो है वो आपको 10% का लगता है। तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट करने के टैक्सेशन है। बहुत लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को कैश फ्लो की तरह लेना चाहते हैं। लास्ट 2-3 साल में लोग म्यूचुअल फंड में मंथली डिविडेंड लेते थे, क्यों? उनको कैश फ्लो चाहिए था। पर डिविडेंड में क्या होता है, वो एक रेगुलर नहीं होता है, ना रेगुलर अमाउंट होता है, और आपको डिविडेंड मिलना मतलब जरूरी नहीं है आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है, हो सकता है कभी कभी कैपिटल पे लॉस आए। तो सबसे बेहतर तरीका, वन टाइम इन्वेस्ट करके आपको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, तो मोस्ट टैक्स इफेक्टिव इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए कि अगर किसी ने डिविडेंड के थ्रू 5,000 का महीने का कैश फ्लो लिया है, तो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है तो उसको 5% का टैक्स लगा। हायर टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है तो 35.88 का डिविडेंड पे टैक्स लगा। अगर वो एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से एक कैश फ्लो ले रहा है, रेगुलर कैश फ्लो, तो उनको जो टैक्स लगा है 1% का ही टैक्स लगा है। तो डिविडेंड ऑप्शन कभी मत चूज करिए अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। आपको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए जा सकते हैं। वैसे जो डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका टैक्सेशन 1 साल इक्विटी में था, तो यहाँ 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म होता है, 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे एक आपको बेनिफिट 3 साल से ज्यादा रुकने पे ये मिलता है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन यानी मान लीजिए कि आपने एफडी किया 1 लाख रुपए का, और आपको वहां पे मान लीजिए 8,000 साल का आ रहा था, तो 3 साल के 24,000 रुपए आए। तो 24,000 पे आपको टीडीएस काट के मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर म्यूचुअल फंड में भी मान लीजिए आपको 3 साल में 24,000 आया, तो वो ये देखते हैं कि 1 लाख रुपए की महंगाई की वजह से वैल्यू बढ़ गई 1,15,000। तो महंगाई के बाद जो गेन हुआ है, यानी 1,15,000 से ज्यादा जो गेन हुआ है, यानी 9,000 जो एक्स्ट्रा गेन हुआ है, सिर्फ 9,000 पे आपको टैक्स देने आता है, विच इज 20%। तो आप देखोगे टीडीएस के कंपेयर में, तो म्यूचुअल फंड में आपके टैक्स कम लगते हैं डेट के इन्वेस्टमेंट में। So this was from my side. If any questions, the floor is open for Q&A. आप अपने Q&A post कर सकते हो. So thank you very much. Thanks for your time. Lalit ji, there is one question from one of our employee. आप Q&A section में if you can see. Yeah, SIP secure है. Somebody have posted that. जी, there is a chat and there is a question Q&A box में there is a question also, wherein we can answer one by one. So the first question which is been mentioned in the chat box is SIP secure है. So if you can answer. Yeah, so higher the risk, higher the return, lower the risk, lower the return. तो मैं हमेशा बोलता हूँ गारंटी में दम है, रिटर्न वहाँ कम है, क्योंकि वहाँ आपको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिलेगा अगर कोई चीज गारंटीड या सिक्योर्ड होती है। और जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में बताया, सबसे सिक्योर और सेफ गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट आपसे 10 साल के लिए उधार लेता है और आपको 6% का इंटरेस्ट दे रहा है 10 साल के पेपर में। अगर आपके रिटर्न 6% के ऊपर जा रहे हैं तो यस देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। लेकिन क्योंकि हम एसआईपी लंबे समय के लिए करते हैं, तो लॉन्गर द टेन्योर लोअर द रिस्क। तो जैसे मैंने बोला ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। लेकिन जैसे ही आपकी अवधि इन्वेस्टमेंट की लंबी हो जाती है, तो रिस्क आपका मिनिमल हो जाता है। तो हमने जैसे सेंसेक्स की भी जर्नी में देखा कि 100 रुपए से जो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था आज 47,000 पे है, यानी 470 गुना का ग्रोथ 41 साल में हुआ है। तो एसआईपी इज मंथली सेविंग।
तो एक तो लंबा समय भी रुका, हमारा रिस्क कम हो गया, प्लस हम हर महीने खरीद रहे हैं, तो हर महीने कभी बाजार सस्ता होगा, कभी महंगा होगा, तो हमारी बाइंग जो है एवरेजिंग प्राइस पे होगी, तो रिस्क हमारा और कम हो गया। तो यस, एसआईपी इज रिस्की बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट, बट आपका टेन्योर लंबा होने की वजह से रिस्क कम हो जाता है, मंथली एवरेजिंग बाई करने से और लो हो जाता है, और रिटर्न्स आगे जाके आपके अच्छे बनते हैं। अगर आप सिक्योर्ड को कंपेयर करोगे एसआईपी में, जैसे आप आरडी करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, तो वहां आपका रिटर्न 6% 7% से ज्यादा नहीं आएगा। बट यहाँ आप देखोगे ऑन एन एवरेज जो इंडेक्स ने ही रिटर्न दिया है, मैं कोई फंड की बात नहीं करूंगा, जो सेंसेक्स या निफ्टी हमारा इंडेक्स है उसने भी 12% से ग्रो किया है, और अगर हम डिविडेंड को भी पकड़े तो 15% से ग्रो हुआ है। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है जो ग्रोथ है वो ज्यादा बड़ा है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। तीसरा है कि हमको क्या रिटर्न मिलेगा, अगर आपको पता लगाना है तो सिंपल चीज है, हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है और हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको एक अंदाज लग जाएगा कि मेरा रिटर्न आसपास बनने वाला है। आपका जीडीपी ग्रोथ का रेट कम हो गया तो रिटर्न कम बनेंगे। बहुत बार ऐसा होता है इन्फ्लेशन हाई होता है, जीडीपी कम होता है तो भी रिटर्न बन जाते हैं। तो ये दोनों को ऐड करके आपको एक अंदाज लग जाता है कि हमको इस कंट्री में क्या रिटर्न बनने वाला है। एक और क्वेश्चन है ललित जी, इसमें अगर आप Q&A बॉक्स में देखेंगे, one of our employee is asking he has invested 5,000 in ITC and Tata Steel, so he's asking is my portfolio is good? So थोड़ा सा अगर आप तो since it's an education program, so I will not comment on particular stocks or scheme, but मैं since सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूँ। If you believe that company is good, आपने उस कंपनी को स्टडी किया है, एंड इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट्स नॉट माय ऑर्गेनाइजेशन ओपिनियन। आईटीसी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो ये क्या करती है आपको पता होना चाहिए। तो ये सिगरेट बनाती थी पहले, सिगरेट से जो रेवेन्यू जनरेट किया इसने उस रेवेन्यू से अलग अलग कंपनियां चालू कर ली। तो दे स्टार्टेड देयर ओन पैकेजिंग, क्लासमेट नोटबुक्स, राइट, होटल्स है इनके, तो देयर बिजनेस इज नाउ वेल डाइवर्सिफाइड, दे हैव एफएमसीजी प्रोडक्ट आल्सो, तो सनफिस्ट जैसा ब्रांड भी उनके पास। तो आपको अगर उस कंपनी पे भरोसा है और आपको लग रहा है ये आने वाले 10 साल 20 साल में इंडिया में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो यस इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग डायरेक्टली शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सेविंग ऑन रेगुलर बेसिस एंड यू आर एन एक्चुअल शेयर होल्डर। खाली मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, जब आप उस कंपनी पे ट्रस्ट करते हो और उस कंपनी का नॉलेज है तो उस पे है ना आप उसके प्राइस को मूवमेंट को देखना बंद कर दो, क्योंकि क्या होता है कि अर्निंग रिजल्ट्स 4 बार आते हैं, स्टॉक प्राइस रोज दिखता है आपको, तो उससे क्या होता है आपका जो डिसिप्लिन है वो गड़बड़ हो सकता है। बट it is good to have 1 or 2 good companies in your portfolio to do an SIP also. म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जब आप वही चीज म्यूचुअल फंड में करते हो तो विद इन सेम अमाउंट यू गेट एक्सपोजर टू 30 कंपनीज 35 कंपनी, तो रिस्क मिनिमल हो जाता है। बट अगर आप अच्छी कंपनी सही कंपनी में कर रहे हो तो यस रिवार्ड इज ऑल्सो गुड। आईटीसी के अलावा आपने कौन सी कंपनी बताई थी? टाटा स्टील इन्होंने लिखा है, आईटीसी एंड टाटा स्टील। सो टाटा स्टील इज अ मेटल कंपनी, इट्स अ कमोडिटी, और कमोडिटी आप देखोगे लास्ट 20 साल का अगर हिस्ट्री ले लोगे तो इट्स अ साइक्लिकल, कमोडिटी हमेशा साइकिल में चलता है। तो 2-3 साल काफी तेजी रहेगी और 3 साल बाद में रिवर्स चालू हो जाता है। तो आपको खाली वो मैनेज करना पड़ेगा कि जब खराब समय चलता है तब आप अच्छी कंपनी है तो ज्यादा एक्यूमुलेट करे, और जब तेजी दिखाए तब थोड़ा स्टॉप करिए अपने आप को, बिकॉज कमोडिटी कंपनी जितनी भी होती है वो साइक्लिकल होती है, वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। तो थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए फॉर एन एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू। बट टाटा एज अ ग्रुप कंपनी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, दे आर वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी, दिस ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज। पर जैसा मैंने बताया म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, आप एक कंपनी नहीं 50 कंपनी में करते हो। फंड मैनेजर को लगता है उस कंपनी में अभी ज्यादा रिटर्न्स नहीं बचे तो कंपनी से एग्जिट होकर दूसरे कंपनी में आ जाता है। बट एट एन इंडिविजुअल लेवल आपके लेवल पे वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि मैंने आप आज टाटा स्टील किया था कल दूसरी कंपनी में करूंगा, तो वो डिसिप्लिन डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, thank you Lalit ji, thank you Mr. Lalit for such an insightful piece of information. Hopefully by now many of the myths regarding our finances are busted. So this session was a piece of information, guide or advice given to us, which was purely suggestive in nature, and implementation thereafter will be also our own decision. Thank you so much Lalit ji, thank you.
So thank you very much for giving me an opportunity. As a closing remark, don't forget LHS equal to RHS. That is a disciplined way of starting your financial planning. So have a proper life cover for an earning member, health cover for family, and one SIP which will take care of you and your family in future. तो ये तीन है, उसके बाद आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बाकी सब देख सकते हैं, पर सबसे पहले ये तीन चीज अगर नहीं है तो ये तीन चीज करा लीजिए. जैसे मैंने कॉस्ट भी बताया था, अगर आप लाइफ कवर और हेल्थ कवर लेते हो तो 40-50 हजार में हो जाता है. 5 से 10 हजार की SIP करते हो तो 60 हजार से 1 लाख रुपए, तो 1.5 से 2 लाख रुपए में हर साल का आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाता है. तो ये करना सबसे पहले जरूरी है. देन उसके बाद जब सरप्लस है, on that you can decide where I want to grow my money for a different horizon with different goals. So thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. With this, we are ending our webinar. Thank you so much, everyone. Thank you, Lalitji.